Now today, let's start with chapter number 5, acid, bases and salt. In this chapter, I will tell you about the acid, what are acid substances or what are acids, what are its property, uses, then we will tell you about the basic substances, उसके different substances देखते हैं उसके क्या uses है. ठीक है, फिर indicators क्या होते हैं, what are conductors, what is the properties of salt, what is salt and different uses of salt. Now, you have learned about the material and we will now learn about the nature of these material. देखो thousands of different kinds of substances that are found in nature and each substance has its own characteristic property, the way they react in other substances. We group these substances into acid, bases and salt. और हम इन substances को किस में group करते हैं? Acid, bases and salt में. First is acidic substances जिन्हें हम acids कहते हैं. So the word acid is derived from Latin word acere, which means sour. And the sour taste of these substances is because of the presence of acid in it. देखो वो sour क्या है, खट्टा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या present है, acid present है. So acetic acid is present in vinegar, lactic acid in curd. और citric acid अब किसमें मिलता है, लेमन में. ये आपको ध्यान रखना है. Acetic किसमें मिलता है, विनेगर में. सिट्रिक आपका कर्ड में, सिट्रिक आपका लेमन जूस में, लैक्टिक आपका कर्ड में. एंड एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस में एसिड होगा वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे. सो मोस्ट एसिड्स यूज्ड इन लैबोरेटरी आर कोरोसिव, मतलब दे हैव अटैक सम सब्सटेंसेस एंड दे विल इवन बर्न द स्किन. देखो इतने डेंजरस होते हैं कि बहुत बार कि वो आपकी स्किन भी डैमेज कर देते हैं. और कुछ एसिड ऐसे होते हैं तो नॉन डेंजरस होते हैं, वो डेंजरस नहीं होते. जैसे हमें अगर कर्ड में चेंज करना है मिल्क को तो हम किसका यूज करते हैं, कर्ड बनाने के, दैट इज लैक्टिक एसिड. An acid donates hydrogen ions. Because of this, when an acid is dissolved in water, the balance between hydrogen ions and hydroxide ions ये क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं. राइट. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, आपका एटम होता है. नाउ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड. देखो कुछ एसिड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होते हैं. सो एसिड दैट मेक्स लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. और जो कम आयंस बनाते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं. जैसे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, निट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. इन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं. और ऐसे टॉक अबाउट एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनको हम वीक एसिड कहते हैं. Now we have concentrated and diluted acid. What is concentrated as acid? If we dissolve a large quantity of substance in a small amount of water, we get concentrated solution. But if a small quantity of substance को हम dissolve करते हैं large amount of water, बहुत बड़े पानी में, तो हमें dilute solution मिलता है. But strong and weak acids cannot be constructed or dyed. जो concentrated acid होता है, it can be diluted by adding water to. While जो diluted acid होता है वो क्या करता है, evaporate करता है water out of it. Now let's talk about the pH scale. pH scale जो होता है वो क्या measure करता है, strength of acid. वो strength of acid को measure करता है on the basis of H plus ion, जो कहाँ present है solution में, किस proportion में, inverse proportion में. The strength of an acid tells how completely it dissociates into H plus ion. Higher the number of H ions, जितने ज़्यादा आपके हाइड्रोजन के आयंस होंगे उतना ही क्या होगा, आपका लोअर pH वैल्यू होगा. और ऐसे पैसा वैसा pH 1 to 2. अगर pH वैल्यू 1 या 2 है तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl. pH 3 4 है वीक एसिड है, आपका एसिटिक एसिड. pH 7 5 to 6 है माइल्ड एसिड, जैसे मिल्क हो गया. और pH 7 ये तो आपका न्यूट्रल होता है. Next is properties of acids. Let's study about some physical properties and chemical properties. First is physical properties. So in physical property जो chemical nature होता है वो कैसा होता है, acidic होता है. ये sour in taste होता है, ये hydrogen ions देता है जो water में dissolve होते हैं. जो acid वाला होता है आपका, acid जो turn होता है वो blue से किस में change होता है, blue litmus red. It do not absorb carbon dioxide gas and do not give any color with phenolphthalein indicator. It do not react with ammonia salt. और ना ही ये ammonia salt के साथ react करता. Acids are generally found in vinegar,
एसिड दे आर जनरली फाउंड आपको विनेगर में, कर्ड में, स्पेनिश, लेमन, सिट्रस फ्रूट, आंवला हो गया, टैमराइड हो गया, ग्रेप्स हो गया, अनराइप सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंजेस यहाँ देखने को मिलता है। एसिड्स जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नाउ सी सम केमिकल प्रॉपर्टीज। Let's see some chemical properties. All acids except nitric acid. सारे एसिड एक्सेप्ट निट्रिक एसिड दे रिएक्ट विद मेटल। ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन, टू फॉर्म सॉल्ट एंड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। और क्या रिलीज कर सके? हाइड्रोजन गैस को। तो जो आपका मेटल है, ठीक है, और आपका एसिड्स है, अगर आप उसको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो मतलब आपका मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इट गिव्स? मैग्नीशियम सल्फेट एंड योर हाइड्रोजन। ठीक है, MgSO4 प्लस H2। एसिड रिएक्ट विद कार्बन। देखो एसिड्स कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, और क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट दे फॉर्म? सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक वी हैव जिंक, we have H2SO4, that is sulfuric acid. What it's give? It's give zinc sulfate and H2, that is hydrogen gas. Now zinc plus 2HCl, मतलब आपको Zn, 2HCl, that is hydrochloric acid. What they gives you? They gives you zinc chloride and hydrogen gas. आपको zinc chloride देते हैं और hydrogen gas देते हैं। एसिड जो होता है वो रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ हीट। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें एसिड विद बेस क्या फॉर्म करता है? आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। दैट इज योर कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। In the above reaction, the acid and base they neutralize each other, and what they form? Salt in that is neutral, and the salt so formed in the reaction is not common salt or not a sodium chloride. यहाँ आप देखते हैं आपके HCl that is hydrochloric acid and sodium hydroxide, ये क्या बनाता है? sodium chloride plus water. Then we have H2SO4, sulfuric acid and potassium hydroxide. What they make? potassium sulfate and water. क्या बना रहे हैं? आपका potassium sulfate बना रहे हैं और water बना रहे हैं। Now it's an activity given to you. You will observe. In this, we will observe the color of acids and bases. So for this, request your teacher to take your school laboratory. आप school laboratory में हम आपको show करेंगे, ठीक है? And now we have uses of acids. We have numerous uses of acids. Acids are often used to remove rust and other corrosion. देखो मेटल से अगर आपको रस्ट, जंक को निकालना है, कोरोजन को निकालना है, तो हम एसिड्स का यूज करते हैं और उस मेथड को क्या बोला जाता है? पिकलिंग। दे मे बी यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ वेट सेल बैटरी सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, जो हम यूज करते हैं कार बैटरी। Then we had strong acid, sulfuric acid. They are widely used in mineral processing. इनका हम किस में यूज करते हैं? मिनरल प्रोसेसिंग में। नाउ फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट मिनरल, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? आपके सल्फ्यूरिक एसिड में, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। और वो प्रोडक्शन करते हैं किसका? फॉस्फेट फर्टिलाइजर एंड जिंक का। और क्या प्रोड्यूस करता है? बाय डिजॉल्विंग जिंक ऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम जिंक ऑक्साइड को किस में मिक्स कर देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में, वो सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करता है और इलेक्ट्रोवेविंग करता है। नाउ निट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, जैसे आपके डायनामाइट हो गए, TNT हो गए, इनमें इनका यूज करा जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, ये मेन इंग्रेडिएंट है किसका? विनेगर का, जिसका हम यूज करते हैं। जैसे आपके पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं ना, बहुत टाइम तक चलते हैं, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव होता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिड रेन्स, ये मेजर इफेक्ट डालता है आपके एयर पॉल्यूशन को। पॉल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में। किसके साथ? विद एटमॉस्फेरिक वाटर एंड ऑक्सीजन। और ये क्या कॉज करता है? ग्रेट डैमेज, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, एज वेल एज जो आपके बिल्डिंग है देखा ना, वो कोरोड हो जाते हैं, येलो पड़ने लग जाते हैं। Then we have basic substance. Acid has been done. Hope you understood acid. Now we have basic.
बेसिक सब्सटेंसेस और बेसिस जिसे हम कहते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट और ये एक सोपी फीलिंग देते हैं, मतलब सॉफ्ट होता है, जैसे आपका बेकिंग सोडा हो गया. सो दे टर्न रेड लिटमस ब्लू और ये न्यूट्रलाइज एसिड्स हैं टू फॉर्म, और ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर. ये न्यूट्रलाइज करता है और क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर. दे आर कंपैरेटिव लेस सॉल्युबल, ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर में देन एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा बिटर इन टेस्ट, यू टेक 1 or 2 pinch ऑफ बेकिंग सोडा ऑन हैंड, उसको आप रब करो तो आपको थोड़ा सोपी टच, मतलब बहुत सॉफ्ट दिखाई देगा. लाइक मैनी एसिड्स मैनी बेसिस बर्न योर स्किन, दे आर कोरोसिव. और वो कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं. When a base is dissolved in water, the balance between hydrogen ion और जो हाइड्रो ऑक्साइड आयंस है वो शिफ्ट करते हैं अपने अपोजिट वे में. Now we have substances like we have sodium hydroxide. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस क्या है इसका, सोप. अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो आपका विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है, हम यूज करते हैं ना घर में विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन, जो आप मतलब आप देखोगे आप डालते हो उसको विंडो पर, कपड़े से क्लीन करते हो. नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका पोटेशियम में होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. नाउ स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस, वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. जैसे हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स पढ़े थे ऐसे बेसिस देखते हैं. सो स्ट्रॉन्ग बेसिस दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर और ये स्किन को बर्न करते हैं. इनको आपको हैंडल करना चाहिए केयरफुली. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के. देन वी हैव वीक बेसिस इज वन विच डज नॉट कन्वर्ट फुली, ये हाइड्रोक्साइड आयंस में कंप्लीटली चेंज नहीं होता. लाइक एमोनिया, लाइम, सोडा ऐश, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सब किसके एग्जाम्पल है, वीक बेसिस के. Then we have the pH scale. The strength of base tells how completely it dissociates. The higher the pH value, जितना ज़्यादा pH value होगा उतना base आपका strong होगा. Next we have properties of bases. Bases क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. बिटर इन टेस्ट होता है, सोपी टच होता है, पिंक कलर होता है विद आप फेनोफेथलिन इंडिकेटर. नेचर जो होता है वो थोड़ा बेसिक होता है. ये क्या देता है आपको, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं. ये आपको लाइम वाटर, सोप, विंडो क्लीनर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलते हैं. NaOH जो होता है आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है. एमोनिया सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है, एमोनिया गैस देता है. देन वी हैव यूजेस ऑफ बेसिस. लेट्स स्टडी अबाउट द यूजेस. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, मेडिसिन में, पेपर में, पल्प में हम इनका यूज करते हैं. देयर आर एसिड एंड बेसिस इन आवर बॉडी टू. HCl इज प्रेजेंट इन स्टमक, और जो सलाइवा होता है इन आवर माउथ वो बेसिक नेचर का होता है, जैसे आपका ब्लड हो गया. व्हेन हेल्थी इज ऑल्सो बेसिक. कास्टिक सोडा यूज इन सोप, मेकिंग पेपर, रेयॉन, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे क्या है आपके बेसिस है. नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, ये यूज करा जाता है न्यूट्रलाइज एसिड्स इन वाटर. एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न एंड एंटीडोट फॉर फूड पॉइजनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फंगीसाइड्स और मिक्सचर ऑफ व्हाइट फॉस. ये किसके साथ मिक्स करा जाता है, आपने देखा होगा सैंड के साथ. नाउ वी हैव इंडिकेटर्स. ये एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है. इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट डिटेक्ट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अनदर सब्सटेंस, उसके कलर को चेंज करके उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर. सो देयर आर सब्सटेंसेस दैट शो चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिड. देखो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं जब वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं. सो द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जिसका हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में वो लिटमस है. और जो सॉल्यूशन that do not show change in color with any indicator, ना तो वो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं. So these substances are neutral substances and some example of neutral substances are water and sodium. लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोपेलेथिन ये कुछ कॉमन यूज्ड एसिड्स और बेसिस इंडिकेटर हैं जो अपने कलर को चेंज करते हैं. दे चेंज देयर color. Now first of all see acid basis indicator.
First is litmus. So litmus is water soluble mixture of different dyes. It is extracted. कहाँ से extract होता है? Leaches and available in a form of solution or strips of paper. जैसे हम litmus paper भी है. We have litmus paper either in red color or blue color. ठीक है? Blue litmus paper turns red under acidic condition और basic condition में red किस में change हो जाता है? Blue पे. ठीक है? Now let's study the activity to test the nature of different substances. जैसे आपको हम टर्मरिक को हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं. टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड आपको फिर उसके पेस्ट में कुछ वाटर डालना है एंड आफ्टरवर्ड टेक अ फिल्टर पेपर और उसको आप टर्मरिक के ऊपर पेस्ट कर दो. देन आफ्टरवर्ड नाउ लीव इट टू ड्राई फॉर 10 to 15. आप 10 to 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दें ऐसी एंड देन यू विल सी स्ट्रिप ऑफ येलो टर्मरिक पेपर जो कलेक्ट सॉल्व सॉल्यूशन या फिर आप कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन ले, शुगर सॉल्यूशन ले, लेमन जूस, विनेगर, जो चाहे आप वो ले सकते हैं और उनको आप सेपरेट टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए. उसके बाद 1 by 1 पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच. आपको हर एक सब्सटेंस के ड्रॉप डाल दिया और फिर आपको चेंजेस देखने क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर और वो किस केमिकल नेचर का होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा. ठीक है, वो तो आपको कलर से पता चल जाएगा या फिर वो न्यूट्रल हो. ठीक है, वो आपको बताना. Next is turmeric. It is a natural indicator. It is yellow in acidic and neutral medium में जब होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है. ठीक है. In basic medium and while washing a yellow stain on your cloth, when yellow stain is rubbed with the soap or detergent, जो उसका कलर होता है आपने देखा होगा वो चेंज हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है. This is because soap solution contains small amount of base, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसलिए आपने देखा होगा पीला जो कलर होता है वो ब्राउनिश में चेंज हो जाता है. ठीक है. और आपने देखा होगा हमारे इंडिया में टर्मरिक को एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज करा जाता है. ठीक है, कट हो गया, वाउंड हो गया वहां पे. सो चाइना रोज इट इज इंडिकेटर प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग द चाइना रोज पैटर्न इन अ वार्म वाटर. आप क्या करेंगे? चाइना रोज के जो पैटर्न्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम के लिए वाटर में डाल दें. उसके बाद आप देखेंगे द सॉल्यूशन बिकम्स पिंक एंड नाउ इट इज रेडी टू एक्ट एज अ इंडिकेटर. और वो डार्क पिंक हो जाता है जब आप उसको एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं और ग्रीन हो जाता है जब आप उसको बेसिक मीडियम में. ये चेंजेस हैं जो हमें दिखाई देते हैं. यहाँ पे देखो आपको एक्टिविटी भी दिखाई गई है चाइना रोज की. यू हैव टू कीप इट इन द वाटर इन अ कंटेनर. उसको बॉईल करना है और थोड़े टाइम के लिए आपको छूना है. आप देखो कि जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा, 10 मिनट बाद पिंक कलर का हो जाएगा. नाउ वी हैव योर फिनोलैप्थिलिन. इट इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर. इट रिमेन्स कलरलेस. चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे वो न्यूट्रल हो, वो कैसा रहता है? कलरलेस रहता है, उसमें कोई कलर नहीं होता. नेक्स्ट इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? इन विच एसिड कंबाइंस विद अ बेस. और क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और वाटर. जब आपका एसिड बेस कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. उसको क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लाइक वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और वो क्या फॉर्म करता है? NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड. राइट, एसिड प्लस बेस एल्कलाई है और क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वो क्या देगा आपको? सोडियम फ्लोराइड और वाटर देगा. Now, to observe the neutralization reaction, you have to take a test tube and fill it with 1 quart with dilute hydrochloric acid. With the help of a dropper, add 2 to 3 drops of phenolphthalein indicator. आपको उसको gently shake करना है. Note down its color. You will observe that its solution is color. आपको observe होगा कि जो उसका solution है वो कैसा होगा? Colorless. कोई color नहीं होगा. इसी को हम क्या कहते हैं? Neutralization reaction. Next is your salt. Our next topic is salt. Salt क्या है आपके? Salts are ionic compound generally formed by neutralization of acid with base. इससे form होते हैं neutralization of acid with base. They can be acidic, basic as well as neutral. ये acidic भी हो सकते हैं, basic भी हो सकते हैं और neutral भी हो सकते हैं. Like acidic salt, sodium bicarbonate, basic salt, magnesium chloride, neutral salt, sodium fluoride. ये सब किसके example है? These are the example of some salt.
Now common salt and their common name. Now you can see sodium chloride NaCl, that is common salt. Then we have sodium carbonate Na2CO3 washing soda. Sodium bicarbonate NaHOCO3 baking powder. Barium sulfate BaSO4. और ये क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, बैरियम वाइट. कॉपर सल्फेट, ये तो आपको पता ही होगा, इसे ब्लू विट्रॉल कहते हैं. देन वी हैव एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, एलम फिटकरी पोटैश एलम. ठीक है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, हाउ वी प्रिपेयर डिफरेंट सॉल्ट. सो कॉमन सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट और वाटर देंगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. Then we have salt can be prepared by reaction between acids and metal. Metal displaces hydrogen from an acid to form salt. Or acid plus metal, what it gives? Salt plus hydrogen. And calcium plus sulfuric acid, calcium sulfate plus hydrogen देता है. Salt can be prepared by the reaction of a metal oxide or another salt. जो कैसा है? Acid है. Like metal plus acid, what it gives? Salt plus water. जैसे हमने जिंक ऑक्साइड लिया और आपने क्या लिया? सल्फ्रिक एसिड लिया, तो उसने क्या बनाया? जिंक सल्फेट और H2, दैट इज वाटर. ऐसे आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर प्लस कार्बन. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट. देखो जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर मोस्टली सॉलिड्स. ये एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ठीक है. इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं वाटर में. देन वी हैव यूजेस. तो सॉल्ट्स आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स टू किल और डिस्ट्रॉय इंसेक्ट. इनको हम एज अ पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं आपके इंसेक्ट्स को, पेस्ट को, वीड्स को, फंगी को मारने के लिए. सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट दैट वी ऐड टू आवर फूड, इसका हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेशन. तो हाँ, पिकल्स में, मीट्स में, फिश. नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज यूज्ड इन बेकरी. देखो ब्रेड्स बनाने के लिए, क्ले केक्स बनाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं. पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर. कॉपर सल्फेट इसका हम यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, क्लीनिंग में. देन एमोनिया नाइट्रेट, इसका हम एज अ फर्टिलाइजर और आपका एक्सप्लोजिव यूज करते हैं. सिल्वर नाइट्रेट जिसका हम यूज करते हैं इन डेवलपिंग फोटोग्राफी एंड की. Next we have neutralization reactions in everyday life. Like we have during digestion, too much acid is produced in stomach resulting in stomach disorder. हमको acidity हो जाती है जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं. In order to retrieve the pain, we take bases जैसे milk of magnesia लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, या फिर बेस न्यूट्रलाइजर जैसे हम देखो ना इनो पीते हैं. ठीक है. Then we have the effect of ant sting caused by formic acid. देखो आप या तो बेसिक सोडा, बेकिंग सोडा हम उस पर रब करते हैं, इससे जो उसका स्टिंग होता है वो निकल जाए. Whenever we eat something, the food molecule they decomposed by microorganism present in the mouth. They result in the formation of acid. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टूथपेस्ट. और जो टूथपेस्ट होता है वो हेल्प करता है in neutralizing the effect of acid because they are alkaline in nature. और ये क्या करता है? जो इफेक्ट होता है एसिड का उसको न्यूट्रलाइज करता है. देन वी हैव, यू हैव सीन दैट आवर हेयर गेट रफ आफ्टर अप्लाइंग शैम्पू एंड अगेन टर्न शाइनी आफ्टर वी एड कंडीशनर. जब आप कंडीशनर ऐड करते हो तो शाइनी हो जाता है, बिकॉज जो शैम्पू है वो बेसिक नेचर का है और कंडीशनर एसिडिक नेचर का, इसलिए आप देखेंगे उसके बाद शाइनी हो जाते हैं. नाउ सम फैक्ट्री वेस्ट कंटेन हार्मफुल एसिड्स एंड दीज वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो डायरेक्टली इनटू द रिवर्स और लेक. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जितने भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हार्म पहुंचाता है. देन वी हैव प्लांट्स टेंड्स टू ग्रो इन सॉइल दैट हैज वेरी पर्टिकुलर pH रेंज. इफ द सॉइल इज एसिडिक, देखो अगर सॉइल कैसा है? एसिडिक नेचर का है, तो वी कैन नॉट ग्रो प्लांट इन द सॉइल. इन ऑर्डर टू ग्रो प्लांट वी हैव टू ऐड सम बेसिक कंपाउंड. इसलिए हम देखा होगा लाइमस्टोन पाउडर डालते हैं, एशेस डालते हैं बर्न वुड की सॉइल में, जिससे वो फर्टिलाइज होता है. राइट.
Hope you understood what are acids, what are bases, what are salt. I have explained you each and everything. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.